So we have been talking about financial markets in past few sessions, and we are going to continue our journey into understanding financial markets. As we said before, most of what we wanted to discuss has already been covered. Certain tidbits remain, and these would be independent concepts related to financial markets. We will cover them today. Otherwise, most of our understanding regarding share markets, etc., how do they work, that's the most important part of financial markets. We have already done that. Now, if you have gone through those two sessions, you should be able to understand most of what is going on in the economic section of the newspaper, or the discussions in the media, or when politicians say something, or when those scam 1992 like TV series comes, what's happening, that you can figure out now. So we will look at the rest of the thing now. Not much remains though. Let us start by talking about certain instruments which are issued. इनको फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस, ये तमाम टर्म्स जो भी थोड़ा मार्केट्स के साथ डील करता है, ये टर्म्स उसको पता होगी. अगर आपने वो ऑलिम ट्रेड वगैरह भी डाउनलोड किया होगा कभी फ़ोन पे, जो एप्स होती हैं मार्केट्स की, उसमें आपने ये टर्म्स को देखा होगा. फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस, पुट, कॉल, ये टर्म्स आपने देखी होंगी. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड what do these terms mean. Futures, these are agreements to buy or sell some commodity or some currency, anything on a given date, buy or sell on a given date in future, but the cost is fixed right now. We'll look at the example later. Now this instrument, this agreement is traded on stock market. ये आज हुआ है कि आज से 5 महीने बाद इस रेट पे बिकेगा या ख़रीदा जाएगा. Now these are futures. Forwards are futures. They are nothing different, but they are informal. So futures are within the formal setup. Forwards are in the informal market. Now what's the difference? What difference does it make? It makes some difference. अब देखिए, informal, जैसे these sessions that you are listening to, these are happening in informal settings. If this was a college, I would have to stick to a syllabus. If this was, say for example, class 12th का economics का class, तो मैं proper जो micro economics, macro economics की किताब है, मैं उसके हिसाब से चलता. तो I was bound by some rules. मुझे certain number of lectures में certain amount of syllabus cover करना था. Right now I am doing it of my own will. Informal है. आज मेरा मन कर रहा है, आज मैं फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में बात करूं, मुझे लगता है मैं ये भी कवर करूं, मैं कवर करूंगा. मुझे लगेगा नहीं, ये वाला पोर्शन स्किप कर देते, कोई ज़रूरत नहीं है, स्किप कर सकता हूं. लेकिन फॉर्मल सेटिंग्स में ऐसा नहीं हो सकता. सेम इज़ विद फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स. फ्यूचर्स आर फॉर्मल, सो दे आर विद इन रेगुलेशन. फॉरवर्ड्स आर लिटिल नॉन स्टैंडर्डाइज्ड, दे आर कस्टमाइजेबल. एंड option is also same future and forward, but this includes an option. This includes an option to do what? Whether at the time of maturity we would execute the instrument or not. देखिए, हमने वादा किया ना कि हम 6 महीने के बाद इतने पैसे में बेचेंगे या खरीदेंगे. अब हमने उसमें कंडीशन भी लगाई कि उस वक्त देखेंगे कि खरीदेंगे कि नहीं. So if a future or a forward involves the choice of whether to execute on the date of maturity, it will be called an option. So there will be two types of option: a call option, which is the buying contract, a put option, which is a selling contract. No need to get into these details. We'll look at example से समझ आ जाएगा. अच्छा, needless to say here, ऑप्शंस, ये सारे फ्यूचर्स एट्सेट्रा, दीज आर ऑफ वेरियस डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन क्या है अंडरलाइंग एसेट, किसके बारे में हो रहा है. किसी कमोडिटी का फिक्स हो गया कि 6 महीने के बाद इतने में खरीदना, कमोडिटी. ये करेंसी के बारे में भी हो सकता है. देखिए, आज ही फिक्स कर दिया 6 महीने के बाद मैं आपसे इतने डॉलर खरीदूंगा इतने में, ठीक. तो दिस वुड बी ए करेंसी का फ्यूचर. अब करेंसी के तो मार्केट में चेंजेस होते रहते हैं. यू वुड ऑलरेडी बी गेसिंग कि हाउ वुड दीज थिंग्स वर्क. सो मार्केट में करेंसी का रेट बहुत बढ़ गया, लेकिन आपने पहले ही फिक्स कर दिया था कॉस्ट, तो आपको सस्ते में मिलेगी. तो ऐसे ही कैपिटल फ्यूचर्स भी हो सकते हैं, ठीक.
सो लेट्स लुक एट कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के एग्जाम्पल देखेंगे, उससे ये बात समझ आ जाएगी. सो वंस अगेन, व्हाट्स एन ऑप्शन? ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट बट नॉट द ओब्लिगेशन. ही इज नॉट अंडर ओब्लिगेशन कि जरूरी है आपको अंडरलाइंग एसेट अब खरीदना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा, जरूरी नहीं है. सो ऑप्शंस वुड गिव यू द राइट बट नॉट द ओब्लिगेशन टू बाय और टू सेल, वट एवर इज द ऑप्शन, एट ए स्पेसिफाइड प्राइस. जो पहली स्पेसिफाइड प्राइस को टेक्निकल टर्म में स्ट्राइक प्राइस कहते हैं. सो स्ट्राइक प्राइस पे आपके पास अब ऑप्शन है, आपके पास राइट है, ओब्लिगेशन नहीं है. बिफोर ए सर्टन एक्सपायरी डेट आप ये कर सकते हैं. सो द सेलर ऑफ द ऑप्शन, जिसने ये ऑप्शन बेचा था, ही इज अंडर ओब्लिगेशन. आप अंडर ओब्लिगेशन नहीं है जिसने ये ऑप्शन खरीदा. सो द सेलर ऑफ द ऑप्शन हैज द ओब्लिगेशन टू डिलीवर और टू रिसीव. जो वो बाइंग का है या सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, उसको अंडरलाइंग एसेट को खरीदना या बेचना पड़ेगा ही उसको जिसने ये ऑप्शन खरीद रखा है. तो इसमें हमने बात की कॉल ऑप्शंस होते हैं या पुट ऑप्शंस होते हैं. कॉल ऑप्शन क्या करता है? जिसने ये कॉल ऑप्शन खरीदा, मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन खरीद रखा है, आपके पास राइट है, ओब्लिगेशन नहीं है क्योंकि ऑप्शन है. सो यू हैव द राइट टू बाय एन अंडरलाइंग एसेट. मान लीजिए वो गोल्ड का था, किसी करेंसी का था, किसी भी चीज़ का था, एट द स्ट्राइक प्राइस. स्ट्राइक प्राइस क्या है? उस वक्त जो प्राइस फिक्स हो चुका है. एंड द सेलर ऑफ द कॉल ऑप्शन, जिसने कॉल ऑप्शन बेचा मार्केट में, ही हैज़ द ओब्लिगेशन, उसको बेचना ही पड़ेगा उस अंडरलाइंग एसेट को एट द स्ट्राइक प्राइस. इफ यू एग्जीक्यूट योर राइट. इफ यू डू नॉट एग्जीक्यूट योर राइट, खत्म हो गया मसला. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ये कॉल ऑप्शन को आप खरीदेंगे ही क्यों. आप इसको इसलिए खरीदेंगे अगर आपको लग रहा होगा अंडरलाइंग एसेट का प्राइस बढ़ने वाला है फ्यूचर में. आपको लग रहा है फ्यूचर में ये 1000 रुपये का बिकेगा, मुझे कॉल ऑप्शन में ये से 800 रुपये का ही मिल रहा है, तो आप उसको खरीदेंगे उस ऑप्शन को. मार्केट में जो ही आपको लगा कि 1000 का हो गया, यू वुड सेल इट. सो टेक दिस एग्जांपल ऑफ ए कॉल ऑप्शन. सपोज यू थिंक किसी कंपनी का सुल्का प्राइवेट लिमिटेड, इसका स्टॉक प्राइस नहीं, प्राइवेट लिमिटेड का स्टॉक प्राइस नहीं होगा. ठीक, वी हैव अंडरस्टूड दिस नाउ. इंटरेस्टिंग, राइट? तो सुल्का लिमिटेड ये जो कंपनी है, इसका स्टॉक प्राइस आपको लगता है कि ये बढ़ने वाला है. अभी 50 रुपये पर शेयर है, आपको लगता है ये बढ़ेगा फ्यूचर में. सुल्का इज डूइंग वंडरफुल वर्क, लाइक यू नो. सो यू कुड बाय अ कॉल ऑप्शन दैट गिव्स यू द राइट टू परचेज, से फॉर एग्जाम्पल 100 शेयर्स एट ए स्ट्राइक प्राइस ऑफ 55 रुपीज़. 50 रुपये का बिक रहा है इस वक्त. कॉल प्राइस में शाकिर इज सेलिंग इट एट 55. ठीक है. एक्सपायरिंग इन 3 months, 3 महीने में ये इसको एग्जीक्यूट आपको करना है. अब 2 महीने बीत गए, 2.5 महीने बीत गए, स्टॉक प्राइस सुल्का लिमिटेड का पहुंच गया 60 रुपये पर शेयर. आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन 3 महीने का है, अभी 2.5 ही महीने हो गए. सो यू हैव द ऑप्शन, यू कैन एग्जीक्यूट योर ऑप्शन. ऑप्शन में क्या कहा गया है कि आपको 55 रुपीज़ का मिलेगा बस, राइट? So if you execute, you exercise your call option, you can buy the shares at the strike price. मार्केट में वो 60 रुपये का है, आपको 55 रुपये का मिलेगा. एंड देन 55 रुपये का आपने खरीदा और इमीडिएटली उसको मार्केट में बेचा 60 रुपये में, क्योंकि मार्केट में तो कॉस्ट 60 रुपये की है. सो यू मेक 5 रुपीज़ पर शेयर प्रॉफिट, राइट? अब उल्टा भी हो सकता है. अगर आपने 55 का खरीदा, राइट, आपने कॉल ऑप्शन खरीद रखा है, उसके हिसाब से 55 का है, ठीक, 55. लेकिन मार्केट में स्टॉक की वैल्यू बढ़ी नहीं, इट स्टेड अंडर, से उसकी 45 होगी वैल्यू. बट आपको ज़रूरी नहीं है खरीदना आप शेयर. क्यों आप क्यों खरीदोगे 55 में? रेट फिक्स 55 होगी. सो बिकॉज इट्स एन ऑप्शन, सो यू कैन चूज नॉट टू execute your option. So your option would become worthless. It will expire. What is your loss? Your loss is the charge you pay to buy the option. That's your loss. So and in that case, जिसने वो ऑप्शन बेचा था उसको प्रीमियम मिल गया जितने का वो ऑप्शन आपने खरीदा था. So he gets that. You only lose ऑप्शन का कीमत. अदरवाइज अगर कीमत बढ़ गया था तो उसका लॉस हो जाता. आप 55 रुपये में ही
खरीदते जबकि उसको मार्केट में 60 रुपये मिल रहे थे उसके लिए. So that is the bargain in it. That is the gamble in it. Now you must also be realizing stock market को क्यों Muslim scholars view it as a gamble. वो उसको क्यों gambling मानते हैं. But it's a like thin edged sword कि is it gambling, is it speculation or not. But truth be told, market experts themselves call it speculation. ये proper term है इसके लिए. Speculators कहते हैं investors को. But I think इसमें काफ़ी हो सकता है खुराफात थोड़ा सा उधर ऊपर नीचे कि इज इट स्पेकुलेशन और नॉट. आर नॉट ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन सम वे स्पेकुलेशंस, आर नॉट ऑल इन्वेस्टमेंट्स इन सम वे स्पेकुलेशन. सो दैट देयर द टॉपिक्स और डिस्कशन व्हिच वी कैन टेक सम अदर डे. लेट्स लुक एट पुट ऑप्शन नाउ. व्हाट डज अ पुट ऑप्शन डू? It's very simple to understand if you understood the call option. Put option gives the buyer the right to sell. जिसने ये put option खरीदा ना वही अब बेच रहा है चीज को. So he is selling a thing at the strike price. Strike price is the price that was decided earlier. So the seller of the put option has to buy. उसके पास obligation, उसको अब खरीदना ही पड़ेगा. जिसने ये put option बेचा उसको खरीदना ही पड़ेगा underlying asset. इसको भी example से समझो तो समझ आ जाएगा. मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि कोई कंपनी, अब सुल्काक नहीं, सुल्काक तो फायदे में था, कोई और कंपनी लेते हैं से गुलकाक. सो गुलकाक लिमिटेड नुकसान में जाने वाला है बिकॉज सुल्काक इज रूलिंग द मार्केट नाउ. सो यू थिंक द स्टॉक प्राइस ऑफ गुलकाक कंपनी which is again trading at 50 rupees per share, you think it's going to decrease in future. सुल्काक नहीं मानेगा इसको, इसका प्राइस अब गिरने वाला है. What you can do is you can buy a put option. So you could buy a put option. Now what does this gives you the right to sell 100 shares of Gulkak's stock at 45 rupees. You think it's going to 30. ये फ्यूचर में 30 जाएगा, बहुत बुरा हाल होने वाला है इसका. तो पुट ऑप्शन में आप लेते हैं 45 का ये. So now someone has purchased it. So if the stock price of Gulkak's share falls, it falls before your option has expired, say 6 months या 3 months, 4 months जो भी था उसका expiry, you can exercise your put option and sell the shares at the strike price of say 45 जो भी आपका फिक्स हुआ था, which is higher than the market cost. मार्केट में वो 30 रुपए का हो गया, 25 रुपए का हो गया, तो आप मार्केट से फायदे में होंगे. So these are call options. If you did not understand it, pause it here, go back and listen to the section once again. Let's look at some other concepts. There is something called external commercial borrowings. इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. एक्सटर्नल यहाँ पे इकोनॉमी के टर्म में बताया जा रहा है. दैट मीन्स आउटसाइड कंट्री. सो टेकन फ्रॉम नॉन रेजिडेंट्स. कमर्शियल टेकन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, नॉट फ्रॉम गवर्नमेंट. एंड बोरोइंग मतलब कर्जा, लोन. सो बोरोइंग मनी फ्रॉम आउटसाइड फॉर कमर्शियल पर्पसेस एटसेट्रा, दिस इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग. Then there is a very important thing, bonds. Now this is not James Bond, this is an financial bond. तो what is a bond? Financial markets में जब हम bond की बात करते हैं, it's a debt security that represents a loan by an investor to a borrower, typically government or a corporation. ये था फैंसी डेफिनेशन. फैंसी डेफिनेशन को अगर 2 मिनट साइड रखे, आसान भाषा में एक कागज़ का टुकड़ा है. ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है. ज़रूरी नहीं अब कागज़ की शेप में हो, बट एक लीगल लाइबिलिटी है. ठीक, इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी इन्वेस्टर ने बॉन्ड खरीदा, मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, मैंने बॉन्ड खरीदा. मैंने असली में क्या किया, ये तो फैंसी तरीका है इसको कहने का, मैंने किसी को वो रुपए लोन पे दे दिए. बस ये है इसका मतलब. जिसने वो बॉन्ड इशू किया था, बॉन्ड किया इशू गवर्नमेंट है, दैट मीन्स गवर्नमेंट को पैसा चाहिए. ठीक, और मैंने बॉन्ड खरीदा, दैट मीन्स मेरे पास पैसा था, मैंने उनको दे दिया. तो उस कागज़ के पन्ने की वैल्यू मैंने गवर्नमेंट को दे दी. और मुझे क्या मिलेगा बदले में? अब वो बॉन्ड की कंडीशंस होंगी, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड है. से फॉर एग्जांपल बॉन्ड की कंडीशन है 5 साल बाद ये पूरा पैसा वापस मिलेगा और हर महीने 1000 रुपये मिलेगा. गुड,
गुड फॉर मी, ये हो सकता है। कुछ और कंडीशन भी हो सकती है, यूजुअली ये कंडीशन नहीं होती, मैं बस बता रहा हूँ। यूजुअली बॉन्ड्स आर सोल्ड एट ए लोअर कॉस्ट एंड द एंटायर कॉस्ट इज पेड लेटर। सो 1 लाख रुपए का बॉन्ड है, 80,000 में बेचा और 1 लाख रुपए आपको एंड में मिलेगा, ऐसे होता है यूजुअली। नाउ बॉन्ड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एक टर्म यूज़ होती है सॉवरियन बॉन्ड्स। सॉवरियन से आपको समझ आ रहा होगा, गवर्नमेंट जब कोई बॉन्ड इशू करती है तो यूजुअली उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है सॉवरियन बॉन्ड। इनकी बड़ी इज्जत है। वाई? क्योंकि गवर्नमेंट्स यूजुअली डू नॉट डिफॉल्ट अनलेस एंड अनटिल यू आर जिम्बाब्वे और सर्टन अदर कंट्रीज इन आवर नेबरहुड एज वेल, तो उनके भी हालात थोड़े टाइट हैं। तो इस वजह से फिस्कल डिफिसिट गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मार्केट में आपके बॉन्ड की इज्जत, योर मनी मेकिंग पावर इज रिफ्लेक्टेड इन इट। आप कितना फाइनेंशियल डिसिप्लिन में है आपकी गवर्नमेंट। नाउ these bonds, sovereign bonds can be denominated in foreign और डोमेस्टिक करेंसी। डॉलर्स में बिक रहा है, आपकी लोकल करेंसी में बिक रहा है, तो ऐसे ही चलता है। नाउ इसको सॉवरेन बॉन्ड को हम एक तरीके से समझते हैं। रिसेंट भी क्या 2019 के आसपास हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ने बोला कि हम ओवरसीज़ फॉरेन करेंसी सॉवरेन बॉन्ड्स इशू करेंगे। तो इससे क्या होगा, वो व्हाट वुड हैपन? दैट मीन्स गवर्नमेंट वुड बी टेकिंग मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया से। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान ने डिसाइड किया कि हम ओवरसीज फॉरेन करेंसी सॉवरेन बॉन्ड्स इशू करेंगे। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड में किसी ने खरीदा, यूरोप में किसी ने खरीदा, अफ्रीका में किसी ने खरीदा, हिंदुस्तान से बाहर किसी ने खरीदा। Why would the government want to do it, right? क्यों करना है, इससे क्या फ़ायदा होगा? अब if government is raising money from US, that means it's not raising money from India, right? So Indian money stays with investors' hands. They can invest it elsewhere. Now this is called crowding out. So government की जो domestic borrowing है, अगर वो domestically करे borrowing, गवर्नमेंट ने बोरो किया, दैट मीन्स यू कैन नॉट बोरो इट नाउ, क्योंकि वो किसी और ने से 1 लाख रुपए बचा है बैंक के पास, 1 लाख रुपए गवर्नमेंट ने ले लिया, आप क्या लेंगे? कुछ नहीं ले पाएंगे। सो यू हैव बीन क्राउडेड आउट, दफ़ा कर दिया आपको। सो गवर्नमेंट्स डोमेस्टिक बोरोइंग यूजुअली क्राउड्स आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड इट प्रिवेंट्स इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम फॉलिंग, क्योंकि गवर्नमेंट अच्छा पे करेगी। क्राउडिंग आउट इज अ टेक्निकल टर्म यूज्ड इन इकोनॉमिक्स। इट वुड बी अ फेनोमेना जहाँ पे इंक्रीज्ड गवर्नमेंट बोरोइंग इन द डोमेस्टिक मार्केट्स, इट्स लीडिंग टू अ डिक्रीज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर अदर प्लेयर्स। इसका ऑपोजिट हो गया क्राउडिंग इन। कहीं पे आएगा तो वी वुड ट्राई टू लुक एट दैट एज वेल, बट फॉर नाउ व्हाई वुड गवर्नमेंट वांट टू बोरो फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स? सो दैट इट डज नॉट क्राउड आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विद इन इट्स डोमेस्टिक टेरिटरी। एंड फॉर इंडिया ऑल्सो देयर इज अनदर कंसिडरेशन। इंडिया का सॉवरेन एक्सटर्नल डेट टू GDP रेशो बहुत कम है, ये ग्लोबली लोवेस्ट में से एक है। 5% के आसपास हिंदुस्तान का डेट है टुवर्ड्स आउटसाइड वर्ल्ड। दैट्स पीनट्स, 5% इज पीनट्स। सो और भी फ़ायदे हैं इसके। हिंदुस्तान ग्लोबल मार्केट इंडिसेस में आ जाता, इंडियन कंपनीज़ को बाहर से बोरो करना होता है, तो उनके लिए भी बेंचमार्क बन जाता कि गवर्नमेंट कैसे करती है, इसको हम भी वैसे ही करेंगे। एंड बाहर से डॉलर्स लेना, दैट मीन्स फॉरेक्स रिजर्व्स जो हिंदुस्तान के हैं उनमें भी इजाफा हो जाएगा। नाउ ये फॉरेक्स क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओपन मार्केट, ओपन इकोनॉमीज़ के जो कंसेप्ट है उसको हम फाइनेंशियल मार्केट्स मुकम्मल करने के बाद अगला हम वही देखेंगे इंशाल्लाह। एंड दैट्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स, तो उसमें बड़ा मज़ा आएगा समझने में। फॉरेक्स रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, डॉलर्स वगैरह। लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। अगर रुपी डिप्रिशिएट हुआ, अब तो आप समझते हैं डिप्रिशिएट होना क्या होता है, रुपी की वैल्यू गिर गई विज़ावी डॉलर्स। अब लेकिन आपको तो पेमेंट डॉलर्स में करनी है, सो गवर्नमेंट वुड बी पेइंग मोर एंड मोर। इन्फ्लेशन जो हमने इससे पहले देखा, सो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी जो इंक्रीज़ हो जाएगी इससे मनी सप्लाई, उसका क्या करेंगे? अब जो डॉलर्स आए, मनी सप्लाई तो बढ़ गई ना। RBI क्या करेगा? RBI उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। कैसे? By sucking up exact amount of money out of money supply. We are back to where we started. ठीक, और क्या होता है इससे?
अगर कर्जा लिया चुका है क्या मॉरल हजार्ड, जिस वजह से आप क्रेडिट कार्ड नहीं रखते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जब से रखा तब से 1 रुपये जेब में बचा नहीं। तो गवर्नमेंट अगर क्रेडिट कार्ड खरीद रही है तो गवर्नमेंट कहाँ मानेगी, पूरा खर्चा कर देगी कर्जे पे। सो इट क्रिएट्स मॉरल हजार्ड और अगली जनरेशन के लिए लाइबिलिटीज़। खैर, अब बॉन्ड्स में हमने सॉवरेन बॉन्ड देखा, तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड भी होता है। तो ये क्या हो गया, फॉरेन करेंसी तो आप समझ रहे हैं, बॉन्ड भी अब आप समझ गए। सो दीज वुड बी बॉन्ड्स इशूड इन फॉरेन करेंसी। यहाँ तक तो ये बड़ा सिंपल है, इस वजह से इसको फॉरेन करेंसी बॉन्ड कहेंगे। कन्वर्टेबल का मतलब क्या है? कन्वर्टेबल का मतलब ये हुआ दिस बॉन्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सो। एक और टर्म आती रहती है मसाला बॉन्ड। अब मसाला काइंड ऑफ लिंक्स थिंग्स टू इंडिया। हिंदुस्तान में बड़ा स्पाइस है, हिंदुस्तान हिस्टोरिकली स्पाइस में बड़ा ट्रेड करता था, दुनिया में रिनाउंड था स्पाइस के लिए। साउथ ईस्ट एशिया भी बड़ा मशहूर था स्पाइसेस के लिए। तो स्पाइस एंड देन बॉलीवुड, अब तो स्पाइस बॉलीवुड से आता है तो बॉलीवुड ऑल्सो स्पाइसेस थिंग्स अप। सो मसाला बॉन्ड और ओवरसीज बॉन्ड्स दे आर डिनोमिनेटेड इन इंडियन करेंसी। ये फॉरेन बॉन्ड्स है, ये यहाँ के बॉन्ड्स नहीं है, यहाँ की गवर्नमेंट ने नहीं दिया, ये किसी और ने दिया, बाहर दिया किसी ने, हिंदुस्तान से बाहर, बट डिनोमिनेटेड इन इंडियन करेंसी, और उसने इसका नाम मसाला बॉन्ड रखा है। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने इशू किए थे 2013 के आसपास फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड दे आर नॉट कन्वर्टेबल बट दे आर मोस्टली यूज्ड बाय NRIs एट्सेट्रा। वाई वुड दे यूज इट? इसमें कोई ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बट थोड़ा सा वो हो जाता है ना, क्या कहते हैं उसको, लॉयल्टी टुवर्ड्स योर मदरलैंड। थोड़ा सा लगता है कि अपना है, दूसरे वतन में जब होते हैं तो अपना वतन फिर लगता है कि चलो मसाला बॉन्ड है। तो अदरवाइज खैर आई डू नॉट नो मच व्हाई वुड एनीवन इन्वेस्ट इन इट एज कम्पेयर टू अदर्स इफ नॉट फॉर रिटर्न्स। इफ इट्स गिविंग रिटर्न्स देन वेल एंड गुड, देन एनीवन वुड इन्वेस्ट इन इट। व्हाट एल्स? डिपॉजिटरी रिसीट्स। डिपॉजिटरी रिसीट्स ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। अब इसमें क्या होता है? इट्स इशूड बाय अ बैंक विच रिप्रेजेंट्स अ फॉरेन कंपनीज पब्लिकली ट्रेडेड सिक्योरिटीज। ओ बड़ी टर्म, पब्लिकली ट्रेडेड सिक्योरिटीज। पब्लिकली ट्रेडेड बड़ा आसान, पब्लिकली ट्रेडेड, खुले में उसका खरीद फरोख्त हो रहा है, दैट्स व्हाट इट मीन्स। सिक्योरिटी कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं, किसी भी एक पर्चा, डॉक्यूमेंट, दैट्स ए सिक्योरिटी। खैर, इसको देखते हैं कुछ एक मिनट पे फिर से। पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। सो व्हाट इज अ डिपॉजिटरी रिसीट? इट्स अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इट्स इशूड बाय अ बैंक, इट रिप्रेजेंट्स अ फॉरेन कंपनीज शेयर्स, दैट्स व्हाट इट मीन्स। होता क्या है, एक कस्टोडियन बैंक किसी भी फॉरेन कंट्री में, दैट इज व्हाट इज होल्डिंग एक्चुअल शेयर्स। बैंक ने शेयर्स खरीद रखे हैं, आप बैंक से डिपॉजिटरी रिसीट्स लेते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप एक इन्वेस्टर हैं, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप जापान की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट फॉर सम रीजन यू आर नॉट एबल टू। कोई रीज़न होगा, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज अलाउ नहीं करता आपको ट्रेड करने से, जापान से बाहर के लोग नहीं खरीद सकते, ठीक, कुछ भी रीज़न है, आप उनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं कुछ, वो फॉर्मेलिटीज़ आप नहीं करना चाहते, ठीक, फॉर वट एवर रीजन यू कैन नॉट परचेज इट। इन दिस केस वट यू कैन डू इज यू कैन परचेज डिपॉजिटरी रिसीट्स। से फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स सबसे मशहूर है दुनिया में, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं, से अमेरिकन ADR। आप क्या कर सकते हैं, आप अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स उस कंपनी के खरीद सकते हैं, सो विच अलाउज यू टू इनडायरेक्टली ओन ए पोर्शन ऑफ दैट जापानीज कंपनी। फिर से इस मिसाल को थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर देखते हैं। सो इमेजिन से मित्सुबिशी कॉरपोरेशन है, या से जापानीज सुल्का कॉरपोरेशन है। जापानीज सुल्का कॉरपोरेशन एक जापानीज कंपनी है, इसने ADRs इशू किए हैं और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे अब ट्रेड हो रहे हैं। ये हो रहे हैं ट्रेड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जिस कंट्री में आप हैं, कराची स्टॉक एक्सचेंज। डोंट गेट सरप्राइज, दे ऑल्सो हैव इट। So most countries have their own stock exchange. India's is one of the oldest in Asia. खैर,
सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आप खरीदना चाहते हैं लेकिन आप खरीद नहीं सकते जापान में फॉर वट एवर रीजन, लेकिन उनके जो ADRs हैं दे आर बीइंग ट्रेडेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. अब तो आसान हो गया ना मसला. सो एन इंडियन इन्वेस्टर कैन बाय दीज ADRs if they are traded on this. So I do not know if that happens, but in the New York exchange they would definitely be traded because they are American at the end of the day. Now for an American investor, US investor, they can buy these ADRs on the New York stock exchange just like they would buy any other stock, किसी और कंपनी का, एप्पल का. तो उनके लिए कोई फर्क पड़ा नहीं. तो each ADR would be representing some number of shares in this Japanese Sulka Corporation. So एक ADR मतलब 1000 शेयर. तो आपने एक ADR खरीदा, आपने 1000 शेयर खरीदे. डायरेक्ट ओनरशिप आपकी नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट है थ्रू ADR. सो बाय यूजिंग ADRs that investor can invest in this Japanese company without having to deal with all the complexities of buying the actual shares and doing all of those currency fluctuations, etc. And this really opens doors for others to invest in different markets. Then there is another thing, पार्टिसिपेटरी नोट्स. इसका यूजुअली आपने पार्टिसिपेटरी नोट्स नहीं सुना होगा, P नोट्स सुना होगा, इफ ओनली यू हैव हर्ड. दीज आर ऑल्सो डिपॉजिटरी रिसीट्स ही यहाँ पे. लेकिन जो इन्वेस्टर है ये एनोनिमस है. इन्वेस्टर कौन है ये नहीं पता चल रहा है. अब जो ये जापानीज सुल्का कंपनी है उसको नहीं पता ये खरीदा किसने. जब आपने खरीदा, जिससे खरीदा उसको आपका पता है, लेकिन वो शेयर नहीं कर रहा आगे कंपनी के साथ. अब देखो इसमें मज़ा आ गया इन्वेस्टर को बड़ा मज़ा आ गया. किसी को उसके बारे में पता ही नहीं चलेगी. ठीक. सो P notes, these are issued by some registered foreign portfolio investors, FPIs, to overseas investors जो anonymous रहना चाहते हैं. सो से फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन एनोनिमसली करना चाहते हैं. सो पार्टिसिपेटरी नोट्स हिंदुस्तान के जो होंगे वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे. हिंदुस्तान पहले P नोट्स अलाउ नहीं करता था लेकिन अब करता है P नोट्स अलाउ. और जब से P नोट्स अलाउ हुए हैं तब से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है. नाउ थ्रू दीज इंस्ट्रूमेंट्स यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स एंड since they are used outside India for making investments in shares listed in Indian stock market, they are also called offshore derivative instruments. अब ये डेरिवेटिव जो टर्म है ये आपको अब तक समझ आ गई होगी. डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स उन इंस्ट्रूमेंट्स को कहते हैं जो खुद में तो वैल्यू नहीं रखते लेकिन उनका कोई अंडरलाइंग एसेट होता है जिसकी वैल्यू वो डिराइव करते हैं. सम कमोडिटी, सम करेंसी. So they are derivatives. They are contracts between two parties जो फिर उसमें terms रखेंगे उस agreement में whatever they would be. So जो हमने अभी options देखे ये तमाम derivatives है. क्यों? क्योंकि underlying कुछ commodity होती है जिससे वो derive करता है अपनी value. So that's why it's called a derivative. और भी होते हैं, swaps होते हैं, futures होते हैं. तो ये तो हमने अभी देखे, swaps नहीं देखे, बाकी सारे तो देखे. Now participatory notes जो होंगे ये ब्रोकर्स इशू करेंगे और जो FPIs होंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये तमाम चीज़ें. एंड दे वुड बाय दीज इंडियन सिक्योरिटीज़ एंड देन दे वुड इशू पार्टिसिपेटरी नोट्स टू फॉरेन इन्वेस्टर्स. और जो भी इस पे डिविडेंड्स होंगे, जो भी इस पे कैपिटल गेन्स होंगे, वो दे वुड गो टू इन्वेस्टर्स. हिंदुस्तान से वो जाएंगे इस कंपनी पे, कंपनी देगी उन इन्वेस्टर्स को. तो हिंदुस्तान को नहीं पता चला वो किसके पास गया फाइनली. अब ये अच्छा, लेट्स टेक दिस मोमेंट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड डिविडेंड और ये कैपिटल गेन्स क्या होता है. अब ये भी टर्म्स आपने सुनी होंगी. कंपनी जो प्रॉफिट बनाती है ना, देखिए जब आपने शेयर खरीदा किसी कंपनी का, दैट मीन्स उस कंपनी में आपका शेयर है, आपके मालिकाना हुकूक हैं उस कंपनी में. जितने % आपके पास शेयर हैं, देखिए 100% शेयर आपके पास है, आप उसके फुल फ्लेजर लोते मालिक हैं, राइट. सो इस कंपनी पे आपके मालिकाना हुकूक है. ये कंपनी प्रॉफिट बनाती है, उस प्रॉफिट पे भी आपका हक है. सो डिविडेंड्स वुड बी अ पोर्शन ऑफ कंपनीज प्रॉफिट्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स. जब कंपनी प्रॉफिट में जाती है, ये इस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर सकती है, वापस अपने बिजनेस में उसको इन्वेस्ट कर सकती है, या फिर उसका कुछ पोर्शन शेयर होल्डर्स को दे सकती है. कंपनीज हर कुछ साल में शेयर होल्डर्स को यूजुअली डिविडेंड्स देती है. पॉजिटिव सेंटिमेंट इससे बनता है,
और मतलब खुश रहते हैं आपके इन्वेस्टर्स, दे गेट दिस डिविडेंड आउट ऑफ नोवेयर, आ गया ऑल ऑफ ए सडन, क्या आपके पास इतना पैसा आ रहा है. सो लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी एट्सेट्रा इस सबसे होती है. कैपिटल गेन्स क्या है और व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन्स? कैपिटल गेन्स जो होंगे, दीज आर प्रॉफिट्स जो एक इन्वेस्टर रियलाइज करता है जब वो किसी एसेट को सेल करता है. सच एज यू बाय ए स्टॉक आपने खरीदा था 100 रुपये का, ये बिका 1000 रुपये का. ये जो अब डिफरेंस है बीच में, दैट्स योर कैपिटल गेन. सो इफ़ यू बाय अ स्टॉक फॉर से 50 रुपीज़ and if you sell it for 75, you have made capital gains of 25. Now you see the difference between dividend and capital gain. Now these capital gains can be short term, long term, so you can understand that by the terms. अच्छा, जब ये पार्टिसिपेटरी नोट्स, मतलब नॉट एवरीथिंग इज ना, सभी तब यही करते हैं, इसके कुछ नुकसान भी होंगे ना, राइट? सो वन ऑफ द क्रिटिसिजम्स ऑफ पी नोट्स इज दैट that many Indians are rooting black money and indulging in round tripping through participatory notes. अब ये कैसे होता है, that's beyond the scope of discussion, but let's take this moment to understand what is round tripping, because this is also जो न्यूज़ में आता रहता है, शेल कंपनी वगैरह आपने सुना होगा. Round tripping essentially involves moving money out of a country टू सम प्लेस जहाँ पे टैक्स मिनिमम है, जिसको हम टैक्स हेवन कहेंगे, एंड देन ब्रिंगिंग इट बैक इनटू द कंट्री सच दैट यू डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस इन ए कंट्री जहाँ पे टैक्स हेवन से ज़्यादा है. फाइंडिंग ए वे कि यहाँ पे कमाया पैसा जिस पे आपको यहाँ टैक्स देना चाहिए था, वो पैसा आपने कैसे भी करके उस टैक्स हेवन में भेज दिया. ये यूजुअली लीगल मेथड्स यूज़ करते हैं, एंड देन गेटिंग इट बैक. अच्छा, इसको मिसाल से समझते हैं. एग्जॉस्टिव मिसाल नहीं है, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट तरीके अपनाएंगे. सपोज देयर इज अ कंपनी बेस्ड इन इंडिया एंड इट वांट्स टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस ऑन इट्स प्रॉफिट्स इन इंडिया. ये करना चाहती है. कंपनी एक सब्सिडरी खोलती है, से मालदीव्स में टैक्सेस ही नहीं है. तो अब ये तो लेकिन इंडिया में कर रही है काम, इंडिया में तो टैक्स देना पड़ेगा. इसने क्या किया, इसने एक और कंपनी खोल दी. इसी कंपनी ने, अब ये मालदीव्स में है ये वाली कंपनी, कोई भी लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन आप ले सकते हैं. वी हैव टेकन मालदीव्स. व्हाट इट कैन डू इज अपने प्रॉफिट्स को वहाँ ये ट्रांसफर कर सकती है, एंड देन दिस सब्सिडरी कुड इन्वेस्ट मनी इन इंडिया एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली और थ्रू अदर कंपनीज, एंड द मनी इज बैक नाउ. By doing so, the company would be avoiding paying taxes. अब इसको बहुत तरीके से किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल मालदीव्स की कंपनी और यहाँ की इंडियन कंपनी. मालदीव्स की कंपनी से लोहा खरीदा, कंपनी आप ही की है. लोहा खरीदा आपने 100 रुपये का, लेकिन खरीद सकते थे आप 100 रुपये का हिंदुस्तान में, लेकिन आपने इनसे लिया 10,000 रुपये का. ठीक, 10,000 रुपये का आपने, 100 रुपये का लोहा 10,000 रुपये का लिया. देखिए, आप 10,000 रुपये का तभी ले सकते जब आपके पास है. आपका नुकसान इसमें कुछ है ही नहीं 10,000 का खरीदने में. क्यों? क्योंकि वो कंपनी का फ़ायदा भी तो आप ही का है, पैसा तो आप ही का है फाइनली. तो प्रॉफिट किस कंपनी का हुआ? वो कंपनी जो मालदीव्स में है. यहाँ पे आप दिखाएंगे, देखिए हमारा खर्चा इतना हुआ और हमारा प्रॉफिट कुछ है ही नहीं, ज़ीरो प्रॉफिट है. प्रॉफिट पूरा शिफ्ट हुआ वो मालदीव्स वाली कंपनी में, और मालदीव्स में उसको टैक्स देना नहीं है. सो दिस इज वन ऑफ द वेज इट कैन बी डन. अब मालदीव्स में प्रॉफिट है, पैसा तो वहाँ पे है, उसको हिंदुस्तान वापस लाया जा सकता है. मालदीव्स वाली कंपनी इज इन्वेस्टिंग इन इंडिया, तो आ गया पैसा वापस. ठीक, तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं. तो इसको यूज़ किया जाता है राउंड ट्रिपिंग के लिए, पार्टिसिपेटरी नोट्स को. वी आर नॉट गोइंग इनटू दोज डिटेल्स. व्हाट एल्स कैन वी डिस्कस इन इट? आई डोंट थिंक मच रिमेन्स. if something comes up in another जो subsequent topics जो हम discuss करेंगे, so we will look at those things then and there. But an interesting topic is coming up जिसको हम अगला समझेंगे, and that would be open economy concepts. मार्केट एक्सचेंज रेट, ये जो एक्सचेंज रेट होती है करेंसीज की, ये क्या होती है? रुपीज़ फॉलिंग, व्हाट डज इट मीन टू से रुपीज़ फॉलिंग? तो ये वाई इज़ इट फॉलिंग? एक्सपोर्ट्स आर फॉलिंग, इम्पोर्ट्स आर इंक्रीजिंग, ये सारी चीज़ें, हाउ डू दीज थिंग्स वर्क?
all of them we will look at when we discuss open economy concepts, IMF etc. उसका क्या रोल होता है इसमें, ये तमाम चीज़ों को हम इंशाल्लाह अगले सब्सिक्वेंट सेशंस में देखेंगे. इफ़ यू हैव एनीथिंग टू आस्क अबाउट दिस, इफ़ यू थिंक आई शुड हैव कवर्ड समथिंग विच आई डिड नॉट कवर, don't forget to mention in the comments. I'll be responding inshallah. Take care. Have a good day.